Hello my dear students, welcome back in another video with your English teacher Shehnaz ma'am. Hoping all are you safe and fine by God's grace. So without wasting too much time, let's start another chapter of your English course book, and this is the third chapter of your English reader. And the name of the chapter is The One Straw Millionaire. So as you can see here the name of the chapter, so this we are going to read and learn today. Actually what is given in this chapter, so let us see without wasting our time. So actually this is a folk tale. Have you heard about the folk tale, or do you know any folk tale, or which is your favorite folk tale? So what is the meaning of folk tale? First we will see this. So a very old traditional story that has been passed down from one generation to another in a spoken form. So some examples of this folk tales are the story of the boy who cried wolf, the Pied Piper, the Frog King, Goldilocks and the Three Bears, Jack and the Beanstalk. So maybe we have heard some of the folk tale here. So obviously you have heard the folk tale, this one, the story of the boy who cried wolf. So one boy was there, no? So when he was going in the forest, so always he was making prank with the people, that he was shouting that there is a wolf, there is a wolf. So this is the folk tale. So which basically our parents or grandparents are used to tell us. So let us see what is given here in this chapter. So this is a Japanese folk tale. So Japanese folk tale is about value of listening to advice, having faith and appreciating all things great and small. So in folk tales there is a message, always a message has been given. So there is advice, there is faith. Faith means vishwas, trust, and appreciating. Appreciating means praising someone. So let us see what is the story here. So a long time ago, there lived a penniless young man in Japan. Nothing that he did turned out to be profitable. One day he prayed desperately. Penniless, the word penniless means the person who is not having money. So बहुत समय पहले की बात है, एक यंग मैन था जो जापान में रहता था. उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे ताकि वो किसी चीज़ से प्रॉफिट कर सके या उसके पास कुछ प्रॉफिट आ पाए. सो वो एक दिन प्रेयर करता है. ही प्रेड डेस्परेटली. डेस्परेटली मीन्स मन से, दिल से इच्छुक होके वो प्रेयर करता है. सो व्हाट he asked to the goddess that I am very honest, I am hard working, but my hard work has never been rewarded. So ये बोलता है कि मैं एक हार्ड वर्कर हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत ऑनेस्ट हूँ. सो आई एम नॉट प्रेजिंग, यानी मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता. कैनन गॉडेस ऑफ मर्सी प्लीज़ सेंड मी सम लक. सो ये बोलता है कि प्लीज़ मुझे कुछ लक दीजिए, यानी कि मुझे कुछ अच्छी चीज़ें दीजिए ताकि मेरे साथ अच्छा हो. सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. सो व्हेन ही slept or fell asleep on the steps of the Shirin, he had a dream. So who comes in his dream? So the goddess. Who comes in his dream? Goddess. So कैनन के जो ड्रीम में एक गॉडेस आती है. तो वो गॉडेस क्या कहती है कि जब कल तुम सुबह उठोगे, तुम गिरोगे, और जब तुम गिरोगे तो तुम्हारे हाथ में जो कुछ भी आएगा, ग्रैब मीन्स पकड़ना, टू होल्ड. जब तुम कुछ पकड़ोगे, दैट विल बी ग्रेट वैल्यू, वो सबसे तुम्हारी ग्रेट वैल्यू होगी, मतलब तुम्हारे पास वो बहुत कीमती चीज़ होगी. चेरिश वॉट यू हैव इन योर हैंड एंड गो वेस्ट. चेरिश मीन्स होता है केयर अबाउट समथिंग डीपली. सो यहाँ पे गॉडेस ये भी कहती है कि जो तुम्हें मिलेगा तुम उसे अपने हाथ में लेके वेस्ट डायरेक्शन में जाना. वेस्ट डायरेक्शन, वी नो दैट देयर आर 4 डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. सो गॉडेस कहती है कि वेस्ट डायरेक्शन में जाना. नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग, so what he has dreamt in his dream, so same thing had happened in the next morning. अब जो उसने सपने में देखा वही उसके साथ नेक्स्ट मॉर्निंग को हुआ.
जैसे ही वो गिरता है वो एक स्ट्रॉ पकड़ता है। स्ट्रॉ यानी होता है घास का तिनका। ओके, घास, इट इज़ अ ड्राई ग्रास दैट, घास का तिनका। नाउ लेट अस सी व्हाट हैड हैपेंड अहेड नाउ। सो अ प्रिटी फ्लावर वॉज लाइंग नियर बाय। अब जैसे ही वो नीचे गिरता है और उसने घास के तिनके को पकड़ा तो वहीं पे एक फ्लावर भी था। यंग मैन टुक द फ्लावर एंड टाइड इट वन एंड ऑफ द स्ट्रो। अब यंग मैन ने वो फ्लावर को उठाया और उसे ग्रास के साथ बांधा। ओह वेल, कैनन नोज बेस्ट, आई जस्ट टेक द स्ट्रॉ एंड वॉक टूवर्ड्स द वेस्ट। नाउ यहाँ पे ये बोलता है कैनन नोज बेस्ट। सो कैनन कौन है? कैनन गॉडेस है। तो अब यहाँ पे ये बोलता है कि गॉडेस को मालूम है, सब जानती है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। तो वह इस स्ट्रॉ को लेके आगे वेस्ट की ओर चलने लगता है। ऑन द वे, डू यू वॉन्ट दिस? सो अ बॉय वॉज देयर, सो ही वॉज स्टार्टेड टू शाउट फ्लावर फ्लावर आई वॉन्ट। सो this man asked, do you want this? So that child said yes, he need that flower. So this lady that you can see in this picture, so this lady gave 3 oranges to the man, and she had taken that flower for her child. Now come on the next page. He continues walking west and suddenly, अब वो कंटिन्यू वेस्ट डायरेक्शन में चलते जा रहा था एंड सडनली, तभी अचानक, व्हाट हैपन, क्या हुआ? द यंग मिस्ट्रेस हैज़ सडनली टेकन इल, शी वांट्स सम वाटर। ओके, सो यहाँ पे जो लेडी है, यहाँ पे ये जो ओल्ड मैन है वो बोलता है जो यंग मिस्ट्रेस है वह सडनली बीमार हो गई है। शी वॉन्ट्स सम वाटर, उन्हें पानी की ज़रूरत है। सो इन हिज आंसर ही सेड, I don't have any water, but I do have oranges. So he said, I don't have water, but I have oranges. So he gave all the oranges to that lady. Now the lady ate a couple of oranges and starts feeling better. अब वो लेडीज़ ने एप्पल खाए, अ कपल मीन्स टू ऑरेंजेस खाए और अब वह फील कर रही थी बेटर। नाउ हैविंग द ऑरेंजेस, अब वह कहती है कि मैंने जो तुमसे ऑरेंजेस लिए हैं उसकी प्लेस में मैं तुम्हें ये सिल्क के बंडल्स देती हूँ। सो जब उसने ऑरेंजेस खाए तो उसे अच्छा फील हुआ, तो उसने उसके लिए थैंक यू बोला और उसने ये भी बोला कि आई विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, प्लीज़ टेक दीज रोल्स ऑफ सिल्क। तो अब मिस्ट्रेस ने क्या दिया? मिस्ट्रेस ने रोल्स, सिल्क के जो रोल्स थे उसके पास, वह उस यंग मैन को दे दिया। A straw became 3 oranges and those became 3 rolls of silk. My luck is indeed improving. Now this man is thinking here कि एक घास के तिनके ने मुझे 3 ऑरेंजेस दिया, फिर मुझे 3 रोल्स दिए सिल्क के। सो नाउ अब मेरा लक जो है सुधर रहा है, मेरा लक मेरे साथ है। सो ही कंटिन्यूड ऑन हिज वे वेस्ट एंड मेट अ समुराई। कंटिन्यू यंग मैन अपने रास्ते पे चलता रहा वेस्ट डायरेक्शन में। अब वह एक समुराई से मिलता है। हु इज समुराई? समुराई इज अ वॉरियर। ही इज अ वॉरियर हु फॉट द बैटल्स। I'll trade my horse for the bundles of silk you are carrying. But that horse is dead? No, he is not. He is just resting. अब यहाँ पे बोलते हैं, यंग मैन कहता है कि नो, फर्स्ट दिस समुराई सेड दैट कि मैं इस हॉर्स के लिए तुमसे ट्रेड करना चाहता हूँ। ट्रेड मीन्स सौदा। He wants to do business, that he wants the roll silk. अब जिसके पास जो बंडल थे सिल्क के वो लेना चाहता है और इस प्लेस में वो अपना हॉर्स उसे देना चाहता है। तो अब यहाँ पे यंग मैन बोलता है बिकॉज दिस हॉर्स इज़ लाइंग ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड में लेटा हुआ है, सो इसे लगता है कि ये तो डेड है, ये तो मरा हुआ है। बट दैट समुराई सेड नो, ही इज़ नॉट डेड, ही इज़ रेस्टिंग, ये आराम कर रहा है। जस्ट माई लक टू बी
stranded with a tired horse. No worries, I'll take him in. अब stranded मीनिंग होता है left without the means of moving anywhere. So अब वो देखता है कि यहाँ जो हॉर्स है वो वैसे भी थका हुआ है. So बोलता है चिंता की कोई बात नहीं है, I will take him in. वो उसको अपने साथ लेकर जाएगा. Now come on the next page. What is given here? Once the horse was rested, they went on walking till they came across a mansion. Okay, so meaning of mansion. Mansion means a big house. अब जब हॉर्स ने रेस्ट कर चुका है और वह अपने चलते जा रहे हैं और चलते चलते वे एक मैंशन में आते हैं. मैंशन मीन्स बिग हाउस. Now that you are rested, let's see if I can get you some food and shelter for the night. So यहाँ पे यंग मैन बोलता है कि मैं देख के आता हूँ क्या हमारे लिए कुछ खाना मिलेगा. I can get you some food and shelter for the night. क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना या फिर रात के रहने के लिए कुछ इंतजाम कर सकता हूँ. शेल्टर. शेल्टर मीन्स होता है होम, वेयर वी कैन लिव. जहाँ हम रहते हैं उसे हम शेल्टर बोलते हैं. The owner of the mansion, a rich merchant, met him. यहाँ पे जो word met है, met is the past tense of meet. Okay, that meet यानी मिलना, met means मिला. So यहाँ पे जो owner है, so यहाँ पे जो owner है mention का वो बहुत ही rich person है, यानी कि rich means who is having lot of money. So what a fine horse! I will give you 1,000 pieces of gold for it. 1,000. So now here he offered 1,000 pieces of gold for the horse. Now this young man thought that 1,000. So he was very shocked and surprised that कि एक horse के लिए मुझे 1,000 gold coins मिल रहे हैं. On hearing this offer, the young man fainted in shock. ये बात सुन के young man जो था वो बेहोश हो गया. Fainted. Fainted means unconscious. Unconscious means बेहोश होना. I say, are you all right, daughter? This man has fainted. Bring some water and a blanket. अब ये बोलता है रिच मैन जो है वह बोलता है अपनी बेटी को बोलता है कि ये मैन बेहोश हो गया है, कुछ वाटर लेकर आओ, थोड़ा सा वाटर और एक ब्लैंकेट लेके आओ. Now this is the last page of this chapter. Father, this is the man who helped me with the oranges. Nice to see you again, young lady. Now this lady, this mistress, she recognized here that this is the man who gave me 3 oranges. And I ate those oranges and I felt better here. So now what had happened here? So when he ate oranges, she felt better. So here now they both recognize each other. दोनों ने एक दूसरे को पहचाना. Now you seem to be a kind-hearted fellow. I have been looking for a match for my daughter. अब यहाँ पे जो किंग है, यहाँ पे जो ये मर्चेंट है, जो मैंशन का ऑनर है, वो कहता है कि मुझे तुम एक काइंड हार्टेड फेलो हो और मैं अपनी बेटी के लिए तुम्हारे जैसा ही एक इंसान ढूंढ रहा हूँ. I had like to give you her hand in marriage and make you the heir to my state. अब यहाँ पे जो मर्चेंट है वो बोलता है, ये ऑफ़र देता है कि वह अपनी बेटी की शादी इस यंग मैन से करना चाहता है और अपने जो स्टेट है उसका जो, और यहाँ पे जो जितना भी स्टेट है, जितना भी काम है, जितना भी कारोबार है, वो उसको उसका उत्तराधिकारी बनाना चाहता है. हेयर, दिस इज़ HEIR, हेयर, इट इज़ एयर. So it is H is silent here and the correct pronunciation is air. So here we will use an heir. Okay, so heir means that is उत्तराधिकारी, वंशज, not वंशज, that who will take over the business and empire. I will never let you down, sir. अब यहाँ पे जो यंग मैन है वो बोलता है मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूँगा. There goes the one straw millionaire. अब यहाँ पे सब जितने लोग होते हैं वहाँ पे ये बात करने लगते हैं कि वो देखो ये वन स्ट्रॉ मिलेनियर जा रहा है. वन स्ट्रॉ मिलेनियर मीन्स
जो एक घास के तिनके से वो आज इतना रिच हो गया। I will never forget the goddess lesson. Even a piece of straw can be a thing of great value. I will always work hard and be grateful. अब यहाँ पे यंग मैन बोलता है अपने आप से कि मैं कभी नहीं भूलूंगा कि गॉडेस ने मुझे क्या लेसन दिया है। और ये भी बोलता है कि एक तिनके से, एक घास के तिनके से मैं आज एक बहुत बड़ा इंसान बन गया हूँ। सो वह बोलता है कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करूँगा और एक अच्छा इंसान रहूँगा। सो दिस इज़ वॉट वी हैव लर्नड इन दिस वीडियो। सो आई होप स्टूडेंट्स you would have learned something from here. Now you can like the video if you like it, and you must like it, and you can share this video with your friends and let me your comments, your suggestion, your doubts, whatever you have in this comment section. That's all for the day. Thank you and have a nice day.